ناظرین، اب تک جنگ غزہ تک محدود تھی، لیکن اب جیسا کہ ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ جنگ پھیلے گی اور اب یہ چار سو پھیل گئی اور ایسی پھیلی ہے کہ امریکہ بھی پریشان ہے۔ حماس کی جانب سے عراق میں 2 امریکی فوجی اڈوں عین الاسد اور حریر بیس پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی فوجی اڈوں پر ایسے تابڑ توڑ میزائل داغے گئے ہیں کہ خود امریکی صدر اسرائیل میں بیٹھے حیران و پریشان ہے۔ مبصرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حماس نے امریکہ کے ساتھ بھی گیم کھیلی ہے، پہلے امریکی صدر کو اسرائیل آنے پر مجبور کیا اور پھر امریکی اڈوں پر دھماکے کر دیے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کی جانب سے 4 گھنٹوں میں اسرائیل کے 3 دیگر علاقوں پر مسلسل سینکڑوں میزائل مارے گئے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اب اسرائیل بھی گھٹنوں کے بل آنے کو ہے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل کے ٹینکوں اور جاسوسی کے آلات پر حملے کیے، جس سے اسرائیلی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور اب اسرائیلی فوج ان علاقوں سے پسپا ہو کر لوٹ گئی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے لبنان کی سرحدی علاقوں پر اسرائیلی فوج کی گلیلی ڈویژن کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، جس میں حزب اللہ کے جانبازوں نے اسرائیلی فوج پر گائیڈڈ میزائلوں کا حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے فائرنگ کا نشانہ بننے والے لبنان کے ایک اور سرحدی علاقے پر بھی اسرائیلی فوجیوں کو اسی انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ شیبا فارمز کے علاقے میں بھی اسرائیلی فوج کو ہدف بنایا گیا، جبکہ راس النقورہ کے علاقے میں اسرائیل کی جاسوسی کے آلات کو ایک ایک کر کے تباہ کیا گیا۔ خبر کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے لبنان کی جانب بڑھنے والے ایک ڈرون کو بھی مبینہ طور پر تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ اسی طرح حماس اور حزب اللہ نے فرانس میں بھی جال بچھا دیا ہے، جس کے بعد دھمکیاں بھی ملنے لگی۔ نانٹیس، نائس، ٹولوز اور پیرس کے قریب متعدد ہوائی اڈوں کو حملے کی دھمکی کے بعد خالی کرا لیا گیا۔ فرانس کے 6 ہوائی اڈوں کو حملے کی دھمکیاں ای میل کے ذریعے موصول ہوئی تھیں، جس پر حکام نے ہوائی اڈے خالی کروا کر بم ڈسپوزل اسکواڈ سے چیک بھی کروایا۔ لیکن فرانس اس وقت بے حد ڈرا ہوا ہے، کیونکہ فرانس نے براہ راست اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اب فرانس سمیت امریکہ کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ حزب اللہ اور حماس کو روکنا ان کے بس کا روگ نہیں، اس لیے جو بائیڈن نے اپنے تمام تر بیانات اور قومی پالیسی کے خلاف ایک نہایت ہی مشتبہ قدم اٹھایا۔ امریکہ نے غزہ کے لیے فوری طور پر امداد بھیجنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امدادی سامان کے 20 ٹرکوں پر مشتمل پہلی کھیپ رفح کراسنگ کے ذریعے جنوبی غزہ روانہ کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امدادی سامان کی پہلی کھیپ میں انتہائی ضروری سامان بھجوایا جائے گا، جبکہ امدادی سامان کی دوسری کھیپ کا فیصلہ حالات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اگر حماس نے امدادی سامان پر قبضہ کیا یا اسے گزرنے نہیں دیا گیا تو امدادی سامان کی ترسیل روک دی جائے گی۔ کچھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اس راستے کو اسرائیل کی حمایت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور امدادی سامان میں زیادہ تر جدید ترین اسلحہ اسرائیل تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ حملے تو دونوں جانب سے ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل کو اس وقت دنیا کی مضبوط طاقتوں کا سہارا حاصل ہے، جس کے بل پر اسرائیل مسلسل کارروائیاں کرتا ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی سفارتی کوششیں بھی اسرائیل کو فلسطینیوں پر حملے سے نہ روک سکی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے ایک ہی روز میں مزید 433 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3500 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں بچوں اور عورتوں سمیت اب تک 13000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کے جبالیہ پناہ گزی کیمپ میں 2 گھروں پر اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے بمباری کی گئی۔ ایک واقعے میں 27 اور دوسرے میں ایک ہی خاندان کے 13 افراد شہید اور 15 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے 12 افراد کو غزہ بندرگاہ کے قریب نشانہ بنایا گیا، جبکہ نصیرت علاقے میں مسجد پر بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ لیکن اس کا بدلہ پھر حزب اللہ نے بھی لیا، جس نے 3 اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کر کے ٹینکوں اور جاسوسی کے آلات تباہ کر دیے۔ اسرائیل نے اس کا بھی جواب دیا، لیکن روایت کے مطابق اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ کے مربی علاقے میں واقع ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر اور القدس ہسپتال کے قریبی علاقے پر 30 منٹ تک رہائشی عمارتوں اور سڑکوں پر بمباری کی گئی۔ بموں کے ٹکڑے ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر میں بھی گرے، جہاں عملے کے علاوہ 8000 افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ادھر الشفا ہسپتال کے نواحی علاقے کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا گیا، جس میں بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئیں۔ اقوام متحدہ کے تحت خان یونس میں چلنے والے اسکول پر بھی بمباری کی گئی، جس سے کئی افراد شہید ہوئے، جبکہ قریب ہی گھر بھی تباہ کیا گیا۔ اس میں بھی بڑی تعداد میں اموات ہوئے۔ البکری ہاؤس پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جہاں بھک ہوئے، جبکہ الزیتون کے علاقے میں گھروں پر 20 بم برسائے گئے، جس سے تمام گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اس واقعے میں بھی بڑا جانی نقصان ہوا۔ ناظرین، اب جنگ مزید زیادہ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ معاملہ اب بین الاقوامی ہو گیا ہے۔ امریکہ کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو اسی لیے غزہ کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ منگل کو ہوئے OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی بربریت روکنے کے لیے لائحہ امر پر غور ہوا۔
इजलास में OIC के सेक्रेटरी जनरल को सलामती कौंसिल के अरकान से राबते का इख्तियार दे दिया गया। इजलास में ईरान ने गजा अस्पताल पर हमले के बाद मुस्लिम ममालिक से इसराइल पर पाबंदियां लगाने की अपील कर दी। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम के अरकान को इसराइल पर तेल की बंदिश समेत दीगर पाबंदियां आयद करनी चाहिए। इस इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, फलस्तीन, ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक ने गजा की सूरत हाल पर उम्मत मुसलमान के इज्तमाई मौक़िफ़ का खाका पेश करते हुए एक मुश्तरका एलामिया मंजूर किया। एलामिया में गजा में इंसानी अलमिया का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया गया और इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास जल्द बुलाने की सिफारिश की गई। नाज़रीन, इस खबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसराइल पर पाबंदी लग सकती है। अब तो यहूदी भी इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। मारूफ अमरीकी यहूदी राहिब यसरोल डेविड वेस्ट फलस्तीनियों के हामी और नेतन्याहू के खिलाफ है। वो खुदा के हुक्म की पैरवी में यहूदी रियासत के क़याम की भी शदीद मुखालफत करते हैं। यहूदी राहिब का कहना है कि 2000 साल की हिजरत के दौरान जब हर जगह इन्हें यहूदी होने की वजह से मुजालिम का सामना था, तब मुसलमान ही थे जिन्होंने यहूदियों को अपनी जमीनों पर पनाह दी और इनकी हिफाजत की। मुश्किल वक्त में मुसलमान मुल्कों में ही यहूदियों ने फरोग पाया। अब ज़हूनियों की जानिब से इन्हें मुसलमानों पर यहूदियों से नफरत का इल्जाम लगाना काबिल कबूल नहीं। यहूदी राहिब इस बात पर शर्मिंदा हैं कि ज़हूनी इनके मजहब के नाम पर जुल्म कर रहे हैं, लोगों को खामोश कर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये यहूदियत नहीं सहूनियत है और उन्होंने कहा कि इन लोगों का यहूदियत से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसमें इसराइल का चेहरा बेनकाब हुआ है। ये तो आप जानते हैं कि मंगल की रात फलस्तीन के शहर गजा के अल अहली अरब अस्पताल में खौफनाक बमबारी हुई जिसमें कम से कम 500 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हुई है। वहीं इस वाक़े ने आलमी गम और गुस्से को भी जन्म दिया, जिसके बाद बाहमी इल्जामात का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। फलस्तीनी फरीक को यकीन है कि यह धमाका इसराइली फजाइया के तैयारे से गिराए गए एक और स्मार्ट बम का शख्साना है, लेकिन इसराइल ने फौरी तौर पर इसका इल्जाम फलस्तीनी जंगजुओं पर आयद करते हुए दावा किया कि यह धमाका गजा से दागे गए रॉकेट की वजह से हुआ है, जो अपनी मुकम्मल परवाज की रफ्तार से मुमकिन इसराइली हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहा। बमबारी की फौरी बाद दस्तयाब बहुत कम सबूत कतई नतीजा अखज़ करने के लिए नाकाफी है। तबाहशुदा अस्पताल के मलबे का सिर्फ एक मुख्तार तज्जिया, जिससे मुबैना बम की बैरूनी खोल के फटने वाले टुकड़ों को सामने लाने से ही बमबारी की मुस्बत शनाख्त और जारहियत के नुक्ता आगाज का तयन मुमकिन बनाया जा सकता है। इस ताज़ा तरीन हमले से कबल भी ऐसे शवाहिद का एक बढ़ता हुआ हुजम सामने आया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि गजा में फलस्तीनियों पर इसराइली फजाई हमले बड़े पैमाने पर बिला इम्तियाज किए गए हैं। फलस्तीन में इसराइली अहदाफ के इंतहाई मोहताज तज्जिये मुसलसल फजाई गोलाबारी में वाज़े फौजी नमूने को जाहिर करने में नाकाम रहते हैं, जिससे एक सवाल पैदा होता है कि गुज़िश्ता हफ्ते फलस्तीनियों को शुमाली गजा से इनखला की इसराइली काल के पीछे क्या मंतिक फरमा थी। फौजी हिकमत अमली के नुक्ते नजर से इसके दो मुमकिन जवाबात हैं और ये जवाबात इसराइल के लिए दोनों सूरत में गलत होंगे। पहला इम्कान के गजा की सड़कों पर ऐसी अफरा तफरी फैलाने की ख्वाहिश हो सकती है कि हमास के जंजुओं की नकलो हरकत मुश्किल या तकरीबन नामुमकिन हो जाए। ये मंतिक क्लासिक फौजी सोच है जो मुख्तलिफ जंगों में कई बार कामयाब साबित हुई है, लेकिन ये दो मसावी फरीकों के साथ क्लासिक जंग नहीं है और न ही हमास के जंगजू क्लासिक फौजी फॉर्मेशन है। इस हकीकत को तस्लीम किए बगैर कोई भी इसराइली नुक्ता नजर महदूद कामयाबी की जमानत भी नहीं दे सकता। दोस्तों, कहा जाता है कि जंग के दौरान सबसे पहला कत्ल सच्चाई का होता है। ऐसा हमेशा हुआ है। हाल ही में शुरू होने वाली इसराइल हमास लड़ाई के तनाजर में भी ऐसा ही हो रहा है। इसराइल अपनी हलाकतें और नुकसानात कम से कम बताएं, ये समझ में आता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत के हिंदुओं को फलस्तीनों से ऐसा क्या मसला दरपेश है कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स इन दिनों फलस्तीन मुखालिफ जाली खबरों के सबसे बड़े कारखाने बन चुके हैं। ये भारतीयों के सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जिन पर फलस्तीनियों के खिलाफ मनगढ़ंत जाली कहानियां शाया की गई। मसलन फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक का एक यहूदी बच्चे को अगवा करना और ट्रक के पीछे एक नौजवान लड़के का सर कलम करना वगैरह। दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले भारतीय हिंदू ट्विटर से तस्दीक शुदा यानी ब्लू चेक अकाउंट्स के जरिए पूरे जोरों शोर से मनगढ़ंत झूठी रिपोर्ट्स वायरल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हजारों लोगों की तरफ से शेयर की गई ऐसी ही एक झूठी ट्वीट में दावा किया गया कि हमास ने इसराइल पर हमले का मंसूबा दरअसल अमेरिका से हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर बनाया। बूम भारत की सबसे मशहूर फैक्ट चेकिंग करने वाली वेबसाइट में से एक है। इसने कई तस्दीक शुदा भारतीय ट्विटर सार्फिन को गलत मालूमात की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा। हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी में मिडल ईस्ट स्टडीज और डिजिटल ह्यूमैनिटीज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मार्क ओवन जोन्स भारत से आने वाली गलत मालूमात के सैलाब के बारे में लिखते हैं कि फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के साथ ही अक्सर व बेशतर फलस्तीनी मुखालिफ और इस्लामोफोबिया में डूबे हुए हलकों की तरफ से गलत मालूमात सामने आई हैं। ये खबरें ज्यादातर एलोन मस्क की सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शाया होती है।
7 अक्टूबर को हमास के जनूबी इसराइल पर हमले के बाद से सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत मालूमात का एक दिलचस्प अंसर ये है कि ये झूठी खबरें बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाले अकाउंट्स के जरिए तैयार या फैलाई जा रही हैं। भारत की एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के मुताबिक ऐसे अकाउंट्स भारतीय डिसइन्फ्लुएंसेस के होते हैं जो मुसलसल झूठी खबरें ही शाया करते रहते हैं। इनकी अक्सरियत फलस्तीनियों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा ही करती रहती है। वो फलस्तीनियों को जालिम के तौर पर पेश करते हैं और वाज़े तौर पर इसराइल की हिमायत करते हैं। मसलन इस डिसइन्फ्लुएंस ने अपने अकाउंट के जरिए एक वीडियो को फैलाना शुरू कर दिया जिसमें दावा किया गया कि दर्जनों नौजवान लड़कियां एक फलस्तीनी जंगजू ने लोंडियां बना ली है। ताहम हकीकत यह है कि मज़कूरा वीडियो एक इसराइली स्कूल की है। ये वीडियो न सिर्फ तकनीकी तौर पर गैर मयारी है बल्कि इसमें देखा जा सकता है कि लड़कियां खुशी से चीटिंग कर रही हैं और अपने फोन इस्तेमाल कर रही हैं। इसके बावजूद वीडियो को हजारों रीट्वीट्स और कम से कम 60 लाख तबसरे मिले। वीडियो शेयर करने वाले अकाउंट्स के तजिए से मालूम हुआ कि वीडियो शेयर करने वाले सार्फिन में से ज्यादातर हिंदुस्तान में मुकीम थे। यहाँ तक कि ये वीडियो एंग्री सैफरोन के टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की गई, जो कि भारत से काम करने वाला ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या OSINT चैनल है। ऐसी वीडियो से पता चलता है कि भारत फलस्तीनियों के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडे में मुलविस है कि अपने इंटेलिजेंस चैनल भी फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसमें झूठा दावा किया गया कि फलस्तीनियों ने एक यहूदी बच्चे को अगवा किया है। इस वीडियो पर 10 लाख से ज्यादा तबसरे किए गए। गुमराहकुन वीडियो को नुमायां करने वाले अव्वलीन 10 अकाउंट में से 7 भारत से ऑपरेट हो रहे थे। दोस्तों, अकेले इन 60 ट्वीट्स पर 30 लाख से ज्यादा तासरात मिले। ताहम तजिए पर मालूम हुआ कि ये वीडियो सितंबर की थी और इसका अगवा या दर हकीकत गजा से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इन झूठी वीडियोस को शेयर करने वाले बहुत से अकाउंट्स ट्विटर पर मुस्लिम मुखालिफ तबसरे करते हैं। ये कोई राज नहीं है कि हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया का मसला सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के अरूज के बाद से बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया में कायम इस्लामिक काउंसिल ऑफ विक्टोरिया की एक रिपोर्ट से पता चला है कि तमाम इस्लाम मुखालिफ ट्वीट्स का अक्सरियत का ताल्लुक भारत से है। अपनी किताब में बीजेपी रहनुमा स्वाति चतुर्वेदी लिखती हैं, मैंने बीजेपी की ऑनलाइन सोशल मीडिया फौज का हिस्सा बनकर बहस की है। चतुर्वेदी के इंटरव्यू लेने वालों में से एक साधु खोसला के मुताबिक बीजेपी के पास रजाकारों का एक नेटवर्क है। ये रजाकार नाकदीन को ट्रोल करने के लिए बीजेपी और 2 मुंसलिक तंजीमों से हदायत लेते हैं। साध्वी खोसला के मुताबिक उन्होंने बद इंतजामी, इस्लामोफोबिया और नफरत के मुसलसल बेराज से तंग आकर IT सेल छोड़ दिया, लेकिन ये सिलसिला आज भी जारी है और इसराइल हमास जंग के बाद इसमें तेजी देखी गई है। ताहम ये हकीकत है कि पाकिस्तानी भी खुलकर फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं और झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। और आखिर में अपने नाजरीन से गुजारिश है कि हर खबर की तस्दीक कर लिया करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।